Okay, let's begin. ये वर्ब्स 91 मिनट का है, बट आई डोंट थिंक सो ये हमारे काम का होगा। लेट्स सी, हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, 6 मिनट का है, जस्ट चेक। Class B. Article. And. Rainbow. Shouldn't it be this? Ow! हायर स्टडीज पे हम ध्यान नहीं देंगे अभी। Here we have simple compound complex of 19 minutes. हम इसको एक बार देख लेंगे। Speech not necessary, figure of speech, और उसके बाद यहाँ पे से स्टार्ट होता है। मिले को 7 मिनट में समझाया है। It's all right, हम figure of speech देखेंगे। Just चप देखते रहो उसको, चपड़ के। Figures of speech. A figure of speech is the use of a word or words not based on a literal meaning, which creates a powerful but pleasing effect on the reader. Let us find out some useful tools for spicing up our writing. Sometimes what you mean is not exactly what you say. That's figurative language using words in different ways. Personification, alliteration, repetition, hyperbole, onomatopoeia, metaphor, and simile. When Sarah seems to sit somewhere separate from Santa, or Kanta calls Krishna because she is coming to Kolkata, it's called alliteration. That's what occurred when you got the same sound at the start of every word. Every word. Every word start of. That's what occurred when you. See here, इन्होंने फर्स्ट सबसे पहला यहाँ पे alliteration समझाया है। Means these words are repeated, or it returns that in the beginning of the word it says, okay, जनरली आपको पता होगा, हमने फिगर ऑफ स्पीच सबने थोड़ा बहुत तो सबको आइडिया होगा फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। द मेन कॉन्सेप्ट इज पोएटिक इफेक्ट के लिए करते हैं ये सब चीजें, और ज्यादा अफेक्टिव दिखे सामने वाले को, रीडर्स को। सीधी बात बोलनी हो तो भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल। इन्होंने फर्स्ट समझाया एलिट्रेशन, ओके, थोड़ा ध्यान देना। आई विल मेक श्योर कि हम पॉज करके सभी चीज देखें, और इस लेक्चर में पता नहीं चलेगा देन वी विल डिस्कस आल्सो, ओके। कुंपल, ट्विंकल, कितने एब्सेंट हैं आज? बॉयज में वो दो तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए आए हैं। हाँ, इस तरह बैठना है, बस इस तरह से। यस, तुम इधर आ जाओ बेटा। ओके, सो हियर इट सेज alliteration. This alliteration and repetition both are very similar. अभी alliteration पे ध्यान देंगे। alliteration के अंदर स्पेसिफिक एक वर्ड ही रिपीट होता है पूरे सेंटेंस के अंदर। सारा seems to sit somewhere separate from Santa. Means suppose a specific word is repeated, then it says as alliteration. Here second example, Kanta calls Krishna cause she is here, cause coming and Kolkata. It pronounce also, हमें उसे बोलना भी उस तरह से होता है, के। Got it? So if particular word is pronounced in a particular format, okay, उसको हम alliteration कहते हैं। You have to write it down अगर notes बनाने होंगे तो इसके सबके सब।
If you want to write, you can write. नाइन्थ में यूज होते थे इसकी, यूज करते थे तुम सब नाइन्थ स्टैंडर्ड में फिगर ऑफ स्पीच नहीं, सॉरी डिजिटल इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक करवाए थे इसके अंदर? ग्रामर कभी लिखी नहीं है, विल सी। मैं एक प्रॉपर टाइम निकाल के देखूंगा कौन सा तुम्हारे लायक होगा, वही इसमें लिखेंगे, बिकॉज फिगर ऑफ स्पीच लिटिल बिट हार्ड। On the top it's written we mean different than the literal meaning, means actual meaning से little bit different होता है। कुछ figure of speech exact opposite word predict करेंगे, वो भी हम देखेंगे आगे। Okay, you have to write just this example and alliteration, that's it, and in the beginning figurative language, that figure of speech। आगे बढ़े सर हमारे When you call the same sound at the start of every word, a simile is something you use to compare two unrelated things with an element that's shared. My mind is like an ocean, it's as smooth as jazz, but it's a simile only if it uses like or as. A metaphor is similar, but watch out. Be careful cause you've got to leave like and as out. My mind is an ocean, my words are a river, so keep your ears open as I continue to deliver. Now if this sounds mine. That's it. Okay, so we have to focus on this portion only, simile and metaphor. We discussed earlier also that simile and metaphor are almost similar, okay. If here also we have example, and if I'll tell you a simple example is my sir is like Hitler and my sir is Hitler. Can you explain me my sir is like Hitler example of? My sir is a Hitler of example of? Okay. So here my mind is like an ocean, means we are using word like or as. It's as smooth as jazz. Okay. It is not exactly but as smooth as jazz. Here as word is used, so simile. But it's a simile only if it uses like or as. Simple. Now metaphor is similar, but watch out, like or is we have to remove. My mind is an ocean. My words are are a river. Means we are directly addressing a thing, particular thing to direct. This is one kind of direct addressing. Okay. Right now, simile and metaphor only.
Finished? Similar metaphor. Mining down or the boat hugs the shore, that's personification, nothing less, nothing more. But with a buzz or a ding or a hiss or a roar, that's an onomatopoeia that we are using for sure. Hyperbole, man, that's like a million times harder. Take something true, then exaggerate it way farther. When words are repeated with musical effects so pleasing, that's repetition, while exclamation expresses strong feelings. Now you've heard this song from the beginning to the finish. You've got yourselves some tools to draw your literary image. Let us do some exercise to get to know the various important figures of speech. When similar sounds of consonants usually or letters are repeated, this is called alliteration. So, underline the alliterations in this poem. If you beheld a battle boat bombarding Biscay Bay while the big guns bellowed bold from brazen throat, would you say it was as funny as a bouncing blue-backed bunny blowing bubbles with a bobby in a boat? There is no kind of explanation here. Alliteration. All the B words are repeated. That's it. Create your own alliterations by adding suitable words in the spaces provided. The first one is done for you. Bad, bad, bitter, blueberries. Green, dash, dash. Mad, dash, dash. Cold, dash, dash. Red, dash, dash. Lazy, Try. Little bit. Original pronouns. You have to write. हम इसे ओरल कैसे करेंगे? सिर्फ ग्रीन से दो वर्ड रिलेटेड होनी चाहिए जिसमें सिमिलर साउंड प्रोनाउंस होता हो, सिमिलर साउंड आता हो, सिमिलर साउंड. ओके, हमने के वाला एग्जांपल देखा था. के वाले में सी वर्ड भी आया था, उसमें पर प्रोनाउंस वो इफेक्ट कैसा कर रहा था? के की. हियर आल्सो आंसर तो इसलिए दीदी बोल देने वाली है. तो कोई ट्राई कर रहा हो, मतलब जो ट्राई कर रहे हैं, ओके. तुम ट्राई नहीं कर रहे? हैंड्स डाउन. वन मोर थिंग क्लास, एसएस में भी हम यही लेक्चर लेंगे कि 2 लेक्चर में पागल हो जाओ. ज़्यादा अच्छा एक लेक्चर यहाँ चर्चा होगी, एक लेक्चर हम डिस्कस करेंगे. और अगर टॉपिक नहीं पता चला तो हम विल डिस्कस. एनी प्रॉब्लम? We should start this. Yes, sir. dash, dash. कराएंगे कि नहीं वो? Repetition is the simple repeating of a word within a sentence or poetical line in order to emphasize. And miles to go before I speak. उन्होंने आंसर नहीं दिया, तो हम आंसर देते. Before I go and poetical with repetition is the simple repeating of a word. It was green mad something. चलो आंसर बोलो. ग्रीन से रिलेटेड किसी ने बोला ग्रीन था, मैड था और कुछ था. लेजी. ओके, तो पहले ग्रीन, लास्ट उसके बाद कोशिश करो लास्ट.
ग्रेट ग्रीन ग्राउंड, ऐसा बोला तुमने? तुमने ग्रीन बोला, ग्राउंड बोला, और क्या बोला? Great green ground. यस यू, यस Green grass blue. ग्रीन ग्रास, Blue. green grass blue is also appropriate. Now mad, yesterday we discussed about economics, we discussed this about industries. Can we say that money make mad? Money make mad human being. Okay, fat, lazy, Lisa is a lazy girl, Lisa is a lazy lady, Lisa is the name of a girl, Lisa or lady, Lisa is a lazy lady. हाँ, आ गया, जय महाराज। ओके, एंड समझ आ रहा है कि वो एग्जांपल्स से उतना फोकस नहीं कर पाए हैं। एग्जांपल्स तो भी बहुत जबरदस्त आएंगे जब हम डिस्कस करने बैठेंगे तब, और पेपर में उससे भी हार्ड आएंगे। ओके, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इतने प्रैक्टिस हो जाए एग्जांपल्स के, फिगर ऑफ स्पीच 5 या 4 मार्क्स का पूछेंगे पेपर के अंदर, लेकिन एग्जांपल्स देखते ही तुमको आइडिया आ जाना चाहिए। एन इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20-26 फिगर ऑफ स्पीच सब जब साथ में आएंगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा होगा साथ में, बहुत कंफ्यूज। नाउ रिपीटेशन इज आल्सो सिंपल। हार है, So word within a sentence or poetical line in order to emphasize. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. Spam, 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 spam. Lovely spam, wonderful spam. In times like these, it helps to recall that there have always been times like these. It rained on this tombstone, it rained on the grass, it rained. simple means what? Entire words are used here, entire words, like in alliteration it was a word, specific simple word. Here in repetition entire things, we have a lots of example here. Okay, you don't want to write, you can, otherwise we will discuss. Repetition के अंदर आरती एंड गायत्री ध्यान से देखना, ये लेक्चर के बाद या इसके बाद के लेक्चर्स में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कि जहां हमने बोला तो सब नहीं, तो मजा नहीं आ रहा। समझ आया? रिपीटेशन में आगे बढ़े इसमें हम। It all over the place. Our doubt is our passion, and passion is our task. A simile compares two unlike things, events or actions, using the words like or as crooked as a dog's tail. Which of these is not a simile? He looked like he had fallen. Like a gazelle, the child ran away. The barge went down like lead. He ran like a frenzied windmill. The answer is, he looked like he had fallen. In all the other sentences, two unlike objects have been compared. Read this, only 4 options. He looked like he had fallen. क्यों इन्होंने इसको सिमिले नहीं बोला? ये तो सिमिले हमने पूरा चर्चा किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यू स्टैंड अप। तुमके पीछे इसको सिमिले क्यों नहीं बताया गया? और बाकी के 3 एग्जांपल्स में क्या चीज है? तुमको नहीं दिख रहा है? तुम क्लासमेट हर्ष, इसको बंद कर देंगे बहुत नुकसान हो जाएगा। तुम इधर आ जाओ थोड़ी। अब कट जाता है ये,
यू कैन कम देयर, यू वहां आ जाओ, तुम जाओ, चल जल्दी आ भाई तुम। वेरी सिंपल एग्जांपल, यस आंसर देना है आपको। मैंने क्या बोला है, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको सुनना है। सिमिली बहुत सिंपल सा फिगर, उसमें सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। मींस यहाँ पे लिखा था ऊपर कि हैंड्स डाउन। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मुझे सारे बच्चों को आंसर चाहिए। इतना हार्ड नहीं, इतना तो दीदी सिंपल सिंपल में समझा रही है, तो हमसे तो अच्छा तो ये समझाती है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे आंसर भी दे दिया है कि यहाँ पे क्यों इसको सिमिली नहीं बोला गया। पहला क्यों, हाँ 2 मिनट, अब तुम बोलो। चलो मेन पॉइंट अब मैं पूछता हूं, क्योंकि जनरली सिमिलर होता क्या है, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया गया था। दो अनलाइक ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट नहीं। हमने क्या पढ़ा था, सर इज लाइक हिटलर, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट है। और भी कुछ एग्जांपल था सिमिलर में, माय वॉइस इज लाइक, माय माइंड इज लाइक एन ओशन, माय माइंड इज लाइक एन ओशन। तो माइंड और ओशन दो अलग अलग चीज हैं, अनलाइक ऑब्जेक्ट है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर। पहली बात, हाँ चल पहली बात मेरा क्वेश्चन, तुम्हें ये सेंटेंस समझ आया? पहला सेंटेंस पलक, बेटा हमें कितना पता चला? पहली चीज, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं, है या नहीं। और कंपेयर करना मतलब क्या होता है, हम दो चीज को कंपेयर करते हैं, ये इसके जैसा दिखता है या इसके जैसी दिखती है। इसके जैसा मीन्स हियर लाइक वर्ड वी हैव। आपका जो दो वर्ड, दो आपने सेंटेंस दिया तो उसमें से दो क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन कि कंपेयर, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट हैं या नहीं। क्लास यहाँ पे ये ध्यान देना है कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपको पता चला, आप चलो तुम बताओ, बैठे बोल तू, अब तुझसे तू यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अनलाइक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? सर इसमें अनलाइक ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है, नहीं। चल ये बोल रहे नहीं है, आगे फिर बोल दो। सर क्यों, सर इसमें बोला है कि सिमिली मतलब जो अनलाइक ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें कंपेयर नहीं करते वो सिमिली है, और जिसमें दो अनलाइक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं वो सिमिली है। कुछ गड़बड़ बोला इसमें या मुझे गड़बड़ सुनाई दिया? सर एक सेकंड करेक्ट करना चाहेगा बॉयज में से कोई? मिश्रा जी, दो अनलाइक ऑब्जेक्ट को जब कंपेयर किया जाता है तो सिमिली होता है, जब नहीं अनलाइक ऑब्जेक्ट कंपेयर नहीं होते, जब लाइक ऑब्जेक्ट कंपेयर होते हैं तब सिमिली नहीं होता। सर इन और नीचे लिखा, इन ऑल अदर सेंटेंसेस टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंपेयर्ड। अच्छा आप तुम सब गधे जैसे, मेरा क्वेश्चन ये था कि दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स है नहीं इसके अंदर। तो अब तुम बोलो, मुझे करेक्ट एक प्रॉपर डेफिनेट आंसर चाहिए ना। कुछ समय में लेक्चर पूरा होगा तो यही कंटिन्यू रहेगा, ओके? मुझे एक डेफिनेट आंसर चाहिए। तुम या तो ऐसा हो रहा है तुम सबके पास आंसर है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सही से, या तुम सब पता नहीं चल रहा है तुमको। वेट करो, बोलो तुम। सर इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें अनलाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसमें ही दो बार यूज किया गया है, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में उसको बोला गया है। नाउ शी इज टेकिंग अस टू अ पॉइंट। बेटा हाँ सब तुम बोलो। सर फर्स्ट सेंटेंस में ऐसा ही लुक लाइक कि एक फॉर है वो गिर सकता है, लेकिन फोर्थ सेंटेंस में ही हैज लाइक अ फ्रेंडशिप विद मी, तो फ्रेंडशिप के साथ ऐसे ऐड नहीं कर सकता, वो अनलाइक। यस, अब थोड़ा हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि बाकी के 3 सेंटेंस में हम लाइक अ गेजल द चाइल्ड रैन अवे, ये गेजले बियर की बात हो रही है। ये दो वो चीज है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पे फोकस करना है। ये दो चीज अनलाइक ऑब्जेक्ट है या अनलाइक लिविंग थिंग है। द बैरेज वेंट डाउन लाइक लीड, ये बैरेज को लीड के साथ कंपेयर किया गया। ही रैन लाइक अ फ्रीज्ड विंडो, ही और ये फ्रीज
विंड मिल के तरह दोनों को अनलाइक चीज को कंपेयर किया गया है। आंसर को समझने से पहले हमको एलिमिनेट करना सीखना होगा, एलिमिनेशन करना। यू नो व्हाट इट मींस बाय एलिमिनेशन मींस रिमूव करना उस चीज को या कट करना। ये तीनों में से ये तीन में हमें दो चीज देखे, लाइक अ गेजने द चाइल्ड रन अवे, गेजने की तरह बच्चा दौड़ रहा है, तो बैरेज वेंट डाउन लाइक अ लीफ, बैरेज इज लाइक लीड, ही रन लाइक अ फेंस मिल्ड। हमको पता चला लास्ट बेंच कि यहाँ पे दो अलग, यहाँ पे क्या लफड़ा हो गया। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम बोलोगे पहले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों? बाकी सब बैठ जाओ, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। पहले चलो अब बोलो, हर्ष परमार, हर्ष देख, हर्ष ओके एट 4 लाइन तक तो मेरे को पता चल ही जाएगा। चलो बोलो यहाँ पे